Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 3 of economics, that is poverty as a challenge. Till today, in this chapter, I explain you that what is poverty, and we also learn about the definitions of social exclusion as well as vulnerability and poverty line. Now, today's topic is poverty estimate. Under this topic we have to be learned that what is the estimate of poverty in the world as well as in urban areas or in rural areas. हमने वर्ड में पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे किया है, क्या लेवल है पॉवर्टी का, हाउ मेनी पीपल आर देयर, दोज आर बिलो पॉवर्टी लाइन, दोज आर above poverty line. All this we have to be learned under this topic, that is poverty estimate. Let's start the topic. It is clear from the table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratio in India from about 45% in 1993-1994 to 37.2% in 2004 and 5. See here, we have a decline in poverty nowadays. In the year 93, 1994, we have 45% population is here that is poor. But now the ratio is only 37.2% in the year 2004 and 5. Exactly, the data is here, the poverty ratio. This is the table 3.1, estimate of poverty in India. ये एस्टिमेट है. एस्टिमेट मीन्स हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उनके बेसिस पर, बट एग्जैक्टली सर्वे कितना करेक्ट है ये हम नहीं कह सकते. तो एस्टिमेशन इज हियर. ओके, सो पॉवर्टी रेशियो इज 1993-94 में 507 in rural area and 32% in urban area. It is 329 in rural area, 75 in urban areas. Number of poor in millions, and this is poverty ratio. Okay, ratio 32% थी, ठीक है, and total 45% थी. और यही रेशो 2011-12 में आते आते कितनी रह गई, ओनली 22%. मीन्स रेगुलरली वी आर successful in declining the poverty within the country, but still we have the poverty in our country. but अभी भी poverty हमारे country में है. okay, so 22% it is in rural, both in rural and urban area. Total is 22%. okay, so this is our poverty estimation. It is given here, and here we have the explanation of the above table. 3.1 table की explanation है. 22% रह गई है 2011 में. if the trend continues, people below poverty line may come down to less than for 20% in the next few years. वो कहता है कि अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो नेक्स्ट हमें 22% तक आ जाएंगे हम नेक्स्ट फ्यू डेज में, ठीक है, फ्यू ईयर्स में. ओके, सो ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी डिक्लाइन इन द अर्ली 2 decades, द नंबर ऑफ पुअर declining from 407 million in 2004 to 5 to 270 million in 11-12, with an average annual decline in 2.2% points. मतलब एवरेज डिक्लाइन कितना हो रहा है, 2.2% का in the poverty. okay, so this is our poverty estimation. now come on the next, that is vulnerable groups. now we have to be learn about vulnerable groups. हमारे vulnerable groups क्या हैं, कौन कौन से हैं जो कि हमेशा पॉवर्टी से ग्रसित रहते हैं, या वी कैन से कि दे ऑलवेज हैविंग पॉवर्टी इन देयर लाइफ. उनको हमेशा अपनी लाइफ में पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही है. वैल्यूनरेबिलिटी क्या होती है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन दिस पेज. दैट इज वैल्यूनरेबिलिटी मीन्स सम ग्रुप्स आर हेयर, दोज आर ऑलवेज फेसिंग पॉवर्टी, लाइक SC ST वुमेन्स आर हेयर. ठीक है, हमने यहाँ पर यही पढ़ा था कि वैल्यूनरेबिलिटी क्या है, कि सम
बैकवर्ड क्लासेस आर हेयर, दोज आर ऑलवेज रिमेनिंग पुअर, वो हमेशा पुअर ही रह रहे हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूरेबल ग्रुप्स पढ़ेंगे कि कौन से ग्रुप्स हैं जो हमेशा पॉवर्टी को फेस करते आए हैं और कर रहे हैं। द proportion of people below poverty line is also not same for all social groups. पॉवर्टी लाइन का प्रोपोर्शन सभी सोशल ग्रुप्स में सेम नहीं है। एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया, सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वेलनरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, हाउस होल्ड्स। ये मेजर है सोशल कास्ट में, सोशल SC और ST हाउस होल्ड्स। सिमिलरली among the economic groups the most vulnerable groups are the rural agriculture labor households. और अगर हम इकोनॉमिक ग्रुप्स में चलें, मतलब जिनके पास इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चे, ये जो SC और ST हैं ये सोशल ग्रुप्स हैं, ये इकोनॉमिक ग्रुप्स नहीं हैं, ये सोशल ग्रुप्स हैं जो हमेशा से सोसाइटी के द्वारा एक्सटिंक्शन में रहे हैं, एक्सटिंक्ट रहे हैं। दैट्स वाई वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए हैं एंड दे आर फेसिंग पॉवर्टी। ठीक है, बट हेयर आर सम ग्रुप्स जो कि कुछ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं पॉवर्टी में, जैसे कि रूरल एरिया में लेबर हाउस होल्ड, जो रूरल एरिया में लेबर क्लास है, एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स, और अर्बन एरिया में कैजुअल लेबर्स हैं जो डेली वेजेस पर वर्क करते हैं, वो कैजुअल लेबर्स होते हैं। जिस दिन काम मिल गया उस दिन उनको कुछ मनी अर्न कर लेते हैं, और जिस दिन काम नहीं मिलता तो वो मनी अर्न नहीं कर पाते हैं, तो दे आर अंडर पॉवर्टी, दे आर ऑलवेज फेसिंग पॉवर्टी। ऐसे ही ग्राफ 3.1 शोज द परसेंटेज ऑफ द पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप्स। ये जो ग्राफ है ये हमें शो कर रहा है कि इन द कंट्री विच कैटेगरीज आर वैल्यूनरेबल, कौन सी कैटेगरीज वैल्यूनरेबल है, और हाउ मच नंबर ऑफ पुअर, इनमें कितनी है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स 100% के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 43% हमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में गरीब मिलेंगे। ऐसे ही शेड्यूल्ड कास्ट में 100% के कंपैरेटिवली 29% आपको पुअर ही मिलेंगे। सेम इन द एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो, अगर इंडिया की पॉवर्टी रेशियो में बात करें तो 100 में से हर 22% हमें गरीब मिलेंगे, ये हमारा रेशियो है। कैजुअल लेबर रूरल एरिया में 34% आपको पुअर मिलेंगे। ऐसे ही कैजुअल लेबर इन अर्बन एरियाज 34% आपको पुअर मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज द डाटा दैट शोज द वैल्यूनरेबल ग्रुप्स। ठीक है, ओवर ट्राइब्स आर नॉट बिलोंगिंग टू scheduled tribes are not able to meet their basic needs. Similarly, 34% of casual workers in urban areas are below poverty line. About 34% in casual labor in rural area and 29% of scheduled castes are also poor. The double disadvantage of being a landless casual wages labor household in the socially disadvantaged social groups of the, अब ये सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स हैं जो सोसाइटी में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही फेस करते आए हैं। डिसएडवांटेजेस सोशल ग्रुप्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब। Population highlighted the seriousness of the problem. Some recent studies have shown that except of scheduled tribe, recent studies have shown that except from the scheduled tribes households, all the other three groups, scheduled castes, rural agriculture laborers and urban casual laborers, have seen a decline in poverty in the 1990s. ठीक है कि अब हमने डिक्लाइन देखा है पॉवर्टी का इन ग्रुप्स में, शेड्यूल कास्ट में भी, ट्राइब्स में भी, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स में भी, बट still poverty is there in our country. Apart from these social groups, there is also inequality of incomes within a family. इसके अलावा inequality भी है इनकम में, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये ग्रुप्स तो है ही हैं, पॉवर्टी है,
बट इसमें भी फैमिली में कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा पॉवर्टी फील कर रहे हैं. पॉवर्टी तो है बट कुछ पर्टिकुलर फैमिली में कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए वो पॉवर्टी ज़्यादा आ जाती है. कैसे? जैसे कि एक पुअर फैमिली है और उसमें 2 बच्चे हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है. तो पेरेंट्स क्या कोशिश करते हैं कि वो बॉय को एजुकेशन दे सकें इफ़ दे कैन बी. अगर वो दे सकें तो वो किसको एजुकेशन प्रेफरेंस देंगे? टू गिव बॉय चाइल्ड एज कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड. वो गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, वाई? अब यहाँ पर पॉवर्टी का ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ा? गर्ल चाइल्ड पर. ठीक है, तो वो दे आर ऑलवेज रिमेन पुअर, वो हमेशा पुअर ही रहेंगे. अगर खाने की बात आएगी तो बैलेंस डाइट देने की कोशिश की जाएगी बॉय चाइल्ड को एज कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड. तो ये जो इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, ये फेस करनी पड़ती है विद इन द फैमिली मेम्बर्स. एक पुअर फैमिली में अगर ओल्ड एज पर्सन्स बीमार हैं तो वो उनको मेडिसिन, अगर वो पॉसिबल नहीं है कि वो उनको दिला पाए तो वो अवॉइड कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ओल्ड एज पर्सन है. तो वहाँ पर वो ओल्ड एज पर्सन क्या फील कर रहा है? वो पॉवर्टी फील कर रहा है कि पॉवर्टी का, अगर उसी में कोई यंग पर्सन बीमार हो जाए तो वो उसको मेडिसिन कहीं ना कहीं समहाउ किसी ना किसी वे से लाने की कोशिश करेंगे बिकॉज ही और शी इज़ द यंगेस्ट वन. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये फैमिली इनइक्वालिटीज़ को शो करते हैं. ठीक है, तो let us read it. Apart from these social groups, there is also inequality of income within the family. In poor families, all suffer, but some suffer more than others. ये लाइन ध्यान में रखना कि इनकम इनइक्वालिटी इनकम होती है पुअर फैमिली में. some suffer more than others. In some cases, women, elderly people and female infants are denied equal access to resources available to the family. कि एल्डरली पीपल, वुमेन और फीमेल इन्फेंट्स को हम इक्वली असेस ऑफ रिसोर्सेज नहीं देते विद इन द फैमिली. तो वो क्या है? फैमिली इनइक्वालिटीज़ को शो कर रहे हैं. और दीज पीपल आर मोर वैल्यूनरेबल एज कम्पेयर टू द अदर्स. ये ज़्यादा वैल्यूनरेबल हैं. कौन? वुमेन, एल्डर पीपल, इन्फेंट, फीमेल चाइल्ड एज वेल एज विडोज़. ये ज़्यादा मोर वैल्यूनरेबल ग्रुप्स हैं सोसाइटी में. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि विच ग्रुप्स आर मोर वैल्यूनरेबल, तो दीज ग्रुप्स आर मोर वैल्यूनरेबल. क्लियर? दिस इज 1 मार्क्स क्वेश्चन. 3 मार्क्स में भी आ जाता है. वैल्यूनरेबिलिटी को एक्सप्लेन करो और विच ग्रुप्स आर वैल्यूनरेबल एंड विच आर मोर वैल्यूनरेबल. तो ये पार्ट्स में डिवाइड होकर आ जाता है. ठीक है, चलिए लेट्स रीड अ स्टोरी हियर, द स्टोरी ऑफ शिवरमन. With the help of this story, we have to be learn that how much people are there and किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं और कैसे फैमिली जो है वो मैनेज कर रही है और फैमिली इनइक्वालिटी को शो कर रहा है ये. ठीक है, लेट अस रीड इट. शिवरमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु. तमिलनाडु के एक टाउन में रहता है और ये जो टाउन है ये अपनी हैंडलूम फैब्रिक्स और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए फेमस है. 100 फैमिलीज हैं गांव में और शिवरमन एंड आरेंथियर कॉबलर बाय कास्ट नाउ वर्क एज एन एग्रीकल्चर लेबरर फॉर ₹160 पर डे. ठीक है, बट अब वो एग्रीकल्चर लेबर है तो वो पूरा साल वर्क नहीं कर पाता. सीजनल लेबर है वो, तो 5 से 6 महीने ही काम मिलता है उसको. और ही डज़ और जॉब्स इन द टाउन. और जब उसको काम गांव में फील्ड में नहीं मिलता तो वो कुछ शहर में कोई भी और जॉब्स कर लेता है. उसकी वाइफ जो है वो उसके साथ काम करती है बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज. एंड इवन इफ शी डज नॉट, शी पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवरमन डज. देयर आर 8 मेम्बर्स इन द फैमिली. देखो अब यहाँ पर भी इनइक्वालिटी आ गई, इनकम की इनइक्वालिटी है. कैसे? शिवरमन को उसी काम के लिए ₹160 मिलते हैं और उसकी वाइफ को उसी काम के लिए ₹100 मिलते हैं. देयर आर 8 मेंबर्स. उसकी फैमिली में 8 मेंबर है. शिवरमन जो कि 65 ईयर ओल्ड है, ईयर ओल्ड विडो. शिवरमन 65 ईयर ओल्ड विडो है
मदर इज इल, उसकी जो विडो मदर है वो बीमार है, एंड नीड्स टू बी होप्ड फॉर डेली कोर्स, बट उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है अपने डेली कोर्स के लिए भी. ही हैज़ ए 25-year-old अनमैरिड सिस्टर एंड 4 children aged between 1 to 16 years. देखो मेंबर्स में मैंने क्या बताया, 8 मेंबर्स की फैमिली है. 1 इज शिवरमन एंड हिज वाइफ एंड हिज 4 children. 6 मेंबर्स ये हो गए. 7 इज हिज मदर एंड 8th is his 25-year-old unmarried sister. Shivraman is not able to be marry the sister because of lack of money. पॉवर्टी की वजह से वो अपनी सिस्टर की मैरिज भी अरेंज नहीं कर पा रहा. ठीक है. अब देयर आर 3 of them are girls and the youngest is a son. 4 बच्चे हैं जिसमें से 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है जो सबसे छोटा है. None of the girls go to school. Buying books and other things are school going girls is a luxury and cannot afford. कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता गर्ल्स में से. ऑल्सो ही हैज़ टू गो गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डज नॉट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ. और वो क्या कह रहा है कि वो उनको एजुकेट करना भी नहीं चाह रहा. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या कर देना, उनकी मैरिज कर देनी है, इसलिए उनके ऊपर पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है. हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज जस्ट वेटिंग टू बी डाई सम डे. His sister and elder daughter take care of the household. Shivraman plans to send his son to school when he comes of age. अब देखो पॉवर्टी की वजह से इनइक्वालिटी आ गई ना, कि वो ये तो कोशिश कर रहा है कि मैं अपने बेटे को स्कूल भेज दूँ, बट वो गर्ल्स को स्कूल भेजने की कोशिश नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि इनकी मैंने क्या कर देनी है, शादी कर देनी है. तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आ गई फैमिली में, मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आ गए. एंड his unmarried sister does not get along with his wife. Sasikala finds her burden, but Shivraman can't find a suitable groom due to lack of money. शशिकला उसकी वाइफ का नाम है शिवरमन की, और वो उसे एक बर्डन समझती है. किसको? उसकी सिस्टर को. बट वो उसकी शादी नहीं कर पा रहा. वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी. फैमिली हैज़ डिफ़िकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals a day. फैमिली को मुश्किल हो रही है दिन का 2 वक्त का खाना अरेंज करने में भी. अब शिवरमन जो है मैनेज टू बाय मिल्क वंस इन अ वाइल बट ओनली फॉर हिज सन. वो अपनी वाइफ अपने बेटे के लिए मिल्क मैनेज करता है वंस अ वाइल, कभी कभार, बट और किसी के लिए नहीं. ठीक है. तो दिस इज द स्टोरी दैट शोज द फैमिली वल्नरेबिलिटी एज वेल इनइक्वालिटी. Okay, that's it for today. Next interstate disparities is here. We will discuss in the next video. Till then, goodbye. Thank you.